ये तस्वीरें जो आप अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मथुरा वृंदावन की तस्वीरें नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे कि शायद आज हम आप लोगों को मथुरा वृंदावन की सैर करवाने ले जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। लगता तो ऐसा ही है कि मथुरा वृंदावन के दर्शन आज आपको हम करवा देंगे, लेकिन दिल थाम के बैठिए। ये तस्वीरें कठुआ शहर की, वो कठुआ शहर जहाँ पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कठुआ नगर पालिका, कठुआ प्रशासन, कठुआ पुलिस प्रशासन और हमारे धर्म व समाज के ठेकेदारों के द्वारा अक्सर हम देखते हैं कि कठुआ शहर में बनी हुई बड़ी बड़ी गौशालाएं ये दावे करती हैं कि हमने गोवंश को सुरक्षित रखा हुआ है। ये तस्वीरें देखकर आपको प्रतीत हो ही जाएगा कि आखिर कठुआ शहर में गोवंश कितना सुरक्षित है। जिला कठुआ के मुख्य चौक चौराहों पर हम अक्सर ये देखते हैं कि आवारा पशु खुलेआम घूमते हैं। अगर घूमते रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही आवारा पशु कभी कभी काल बन के पेश हो जाते हैं। आज तक ना जाने इन आवारा पशुओं ने कितने लोगों की जान ली होगी। ना जाने आज तक कितने मासूम लोगों के लिए ये आवारा पशु काल बनकर पेश हुए होंगे। आखिर इस समस्या का जिम्मेदार कौन है? क्या हम जिम्मेदार हैं? क्या आप लोग जिम्मेदार हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर जिम्मेदार है हमारे प्रशासन? आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कठुआ के लोग कि आखिर इस समस्या के लिए जिम्मेदार है कौन। मेरा नाम रविंद्रपाल सिंह है, मैं कांग्रेस ਦਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਠੂਆ ਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਝੂਠੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜਪਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਡੰਗਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਠੂਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਡੀਸੀ ਕਠੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪਿਛੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਵਨ ਚੱਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਗੇ ਗਾਈ ਬੈਠੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਨ ਸਪੌਟ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ 6 ਵਜੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣਦਾ ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਘੋਸਲਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਈਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੱਛ ਇੰਡੀਆ, ਸਵੱਛ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਕਿ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਡੰਗਰ ਅਗਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਠੂਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਕਠੂਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਠੂਏ 'ਚ, ਇਸ ਚੌਕ 'ਚ, ਉਸ ਚੌਕ 'ਚ, ਹਟਲੀ ਮੋੜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਇੱਥੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਖਾਸ ਕਰ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਕੋਸਲਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੰਗਰ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਸੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
इस करके मैं खास करके मंग करांगा गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਸ ਕਠੂਏ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਾ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ पए ਨੇ। शहर की बात करें तो कितना आतंक लगता है आपको जो जानवर सड़कों पर होते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? जिला इंतज़ामिया जो है अब तक कोई इसको लेकर कदम नहीं उठा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो आवारा जानवर जो सड़कों में गलियों में घूमते हैं, ये 90% जो जानवर हैं ये उस टाइम के हैं जब बोवीन स्मगलिंग से जानवर पकड़े जाते थे, वो थाने में रखे जाते थे। अब थाने में रखे जाते थे, फिर उसके बाद पुलिस वाले क्या करते थे, उनको बाहर निकाल देते थे। आज के टाइम में क्या है कि ये वही जानवर जो पुलिस आजकल बोवीन स्मगलिंग जो जानवर पकड़ती है वो पाकदिली गौशाला में वो वहाँ पे उनको भेज देती है। बट ये जो जानवर हैं ये आज भी जो पहले है ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये देखिए, वार्ड नंबर 1 से लेकर 21 तक हमारे चेयरमैन साहब हैं नरेश शर्मा जी, पिछले दिनों आए दिनों वीडियोज में देखा जाता था कि एसएसपी साहब के साथ मिलके ये रल मिलके कभी ट्रैक्टरों में डाल के कभी ट्रक में डाल के जो जानवर थे उनको पकड़ के गौशाला में कहीं ना कहीं उनको रख देते थे। बट ये मेरी पर्सनल ये एक रिक्वेस्ट भी लगा लो एडमिनिस्ट्रेशन से, या ऐसा भी कर लो कि ये अभी ये चीज़ नहीं हो रही है। हाँ, बोवीन स्मगलिंग जो है वो पकड़ी जा रही है, वो जानवर गौशाला भेजे जा रहे हैं। बट जो शहर में है वो शहर जो जानवर है वो पकड़ के वो आए दिन एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। देखिए, रात को जा रहे हो, कुछ काली रंग की गाय है तो वो काले रंग का बैल है वो दिखेगा नहीं, तो वो आ जाके एक्सीडेंट होते हैं। आपके मोहल्ले में एक हादसा हो चुका है, मौत भी हो चुकी है। देखिए, ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बट ये कि म्यूनसिपल चेयरमैन साहब तो सबसे पहले एक ही उनकी ड्यूटी है, एक वार्ड नंबर 1 से लेकर 21 तक जितने भी जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनको उठा के, ये म्यूनसिपल कमेटी की जिम्मेवारी है कि वो उनको कहाँ रखते हैं, उनकी जिम्मेवारी वो अपने बखूबी वो निभा सकते हैं। मैं खुद पटेलर का निवासी हूँ। हमारे पिछले दिनों वहाँ पे जानवर के साथ जिससे हमारे अपने भाई बंधु की टक्कर होगी, उनकी वो वहाँ पे मौत होगी। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, पहली बात। दूसरा, ये आप जैसे ही नहर पे कॉलेज के बाहर आएंगे, बाहर आप 10-12 जानवर एक ही टाइम पे आप वहाँ पे खड़े दिखेंगे। ये जो पीछे पुल है, अम्बेडकर ब्रिज है, वहाँ पे पुल है, वहाँ पे जानवर हैं। मुखर्जी चौक में जानवर हैं। म्यूनसिपैलिटी जो सबसे मेन प्रायोरिटी जो जहाँ तक मेरे को लगता है कि मैं वकील हूँ, मैं थोड़ा बहुत हट के बात करना चाहूँगा कि म्यूनसिपैलिटी को चाहिए कि जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं ना, उनको पकड़ के उनको कहीं गौशाला में उनको रखा जाए। उसका खर्चा म्यूनसिपैलिटी बियर करे। कितने पैसे म्यूनसिपैलिटी, कितनी दुकानें बेचते हैं, कितनी चीज़ें हो रही, कितना ऑक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये तो कमेटी के अपने पास ही आ रहे हैं ना। तो क्या इनको जानवर रखने के लिए 40-50 हज़ार रुपये महीने का ये आराम से मैनेज कर सकते हैं? तो इनको ये जो मौतें होती हैं आए दिन, काम ये म्यूनसिपैलिटी का है। म्यूनसिपैलिटी को जानवर पकड़ने हैं और गौशाला में रखने हैं। पाकदिली में रखें, कहीं में रखें, 4 गौशाला हैं, वो आगे म्यूनसिपैलिटी वाले बेहतर जानते हैं, खर्चा करें, क्योंकि जानवर जो जान है वो बहुत ही कीमती होती है। लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कत होती है? देखिए, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। अब इसी रोड पर देख लें, अब मैं यहाँ से मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, आगे से 2 जानवर खड़े हैं, स्ट्रे एनिमल खड़े हैं, तो वो दिक्कत है ही है। मतलब रोड फ्री नहीं है, थ्रू नहीं है प्रॉपर तरीके की, डर लगा रहता है, पता नहीं कौन सा जानवर कहाँ से आगे आ जाएगा। तो लिहाजा जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, उनको एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ विद फोल्डेड हैंड कि प्लीज़ ये स्ट्रे एनिमल्स का ध्यान रखा जाए, इनको कहीं एडजस्ट किया जाए। है तो जानवर ही है, लोगों की हमारी गलती भी है। कुछ लोग जब गाय दूध देती है तो रखते हैं, जब गाय दूध नहीं देती तो उसको बाहर निकाल देते हैं। जब कोई बच्चू जन्म ले लेता है या उसको वो कहते हैं कि ये मेल है तो उसको निकाल दो घर से बाहर, तो वो इनको भी थोड़ा चाहिए, लोगों को समझ चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि इनको स्ट्रे एनिमल पे थोड़ा चेक होना चाहिए, और म्यूनसिपैलिटी को चाहिए इनको पकड़ के कहीं गौशाला में रखा जाए और खर्चा यही बियर करे। तो ऐसे ही थोड़ा वो जो मेंस है वो इस पर क्रब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मवेशी सर शहर की सड़कों पर हैं, हादसों का कारण भी बढ़ रहे हैं, खुद भी बेचारे अपनी जान गंवा रहे हैं। क्या देखते हैं, किसकी नालायकी है इसके पीछे? मैं बबलू सिंह जसोटिया, कठुआ डिफरेंट का चेयरमैन, आज ये आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी आवारा पशु जो भी सड़कों पे आज की डेट में हम दिखते हैं, ये सरासर हमारी प्रशासन की नालायकी है। प्रशासन को होना चाहिए एक ऐसा तरीका, ये ऐसी कमेटी, ऐसे लोग 10-20 लोगों की एक ऐसा संगठन बनाए जिसमें इन जो जानवरों को सही जगह पे लेके उनको चारा की व्यवस्था करें। पीछे भी इन्होंने काफ़ी ऐसे झूठे वायदे किए, एक गौशाला बनाई, वहाँ पे काफ़ी ज़मीनों का बताया, वहाँ पे हवन जग किए, लोग कुछ पशु जो
जो बॉबिन स्मगलिंग में पकड़ते हैं वहाँ पे उतारते हैं, उसके बाद नहीं पता चलता कहाँ से कहाँ चले गए। ये जो हमें आज की डेट में जो बच्चे या जो भी हमारी गाड़ियाँ जो भी गुजरती हैं, आगे पशु आ जाते हैं, एक्सीडेंट का कारण बनती हैं। और ऐसा एक्सीडेंट कईयों के तो बेचारों के मतलब बाजू टूट गए, टांगे टूट गई, एक्सीडेंट से कई लोगों की मौत हो गई है। तो हाईवे पे भी देखते हैं, जहाँ पे भी देखते हैं, मगर आज तक हमें इसका कोई सही इसका सलूशन नहीं दिखा। मैं चाहता हूँ म्यूनसिपल कमेटी की में जो कला पड़ी हुई है उस कला को ख़त्म करके इस जो पशुओं के बारे में ज़रूर सोचा जाए। और डीसी साहब हमारे जो राहुल यादव जी हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बारे में ज़रूर संज्ञान लें, ताकि हमारे लोगों की जान हिफाजत रहे, बिल्कुल ठीक रहे और एक्सीडेंट से किसी की जान न जाए। सर, इन दिनों देखने में आ रहा है पिछले कुछ समय से जो जानवर थे वो सड़कों पर नहीं दिखाई देते थे, लेकिन अब दोबारा जो है जानवर हादसों का कारण बन रहे हैं और सड़कों चौक चौराहों पे दिख रहे हैं। म्यूनसिपल कमेटी के आप चेयरमैन हैं, क्या देखते हैं सर, किस तरह इन लोगों को निजात मिलेगी? देखो, म्यूनसिपल काउंसिल का जहाँ तक हर आदमी म्यूनसिपल काउंसिल के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि ये काम म्यूनसिपल काउंसिल का है। मुझे आप पहले ये एक बात बताएं, ये इतने बड़े स्थान, इतने बड़े पशु एक कठुआ की जनता ने रखे, ये आए कहाँ से? 2 साल पहले हमने सारे जितने टाउन के अंदर जितने भी जानवर थे हमने इकट्ठे किए वर्क सेंटर में, और वहाँ से उठा के हमने कहीं बाहर बेच दिए। अब बेच दिए तो उसके बाद कहाँ से आएंगे इतने बड़े बैल, इतने बड़े सांड कहाँ से आए? इसकी पहले इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले मैंने तकरीबन कोई 35-40 यहाँ बड़े बड़े जो जानवर थे, यहाँ इस चौक से लेके मुखर्जी चौक में और पुलिस के साथ मिलके हमने सारे वो पशु उठाए थे, जहाँ क्लियर किए थे 2 चौक हमने। अब दोबारा कहाँ इस चौकों में कहाँ से पशु आ गए? ये कठुआ की जनता के नहीं है, ये बड़े बड़े बैल, बड़े बड़े सांड, ये कौन पकड़ता है और छोड़ता कौन है? और जितनी भी जहाँ गौशालाएं बनी हैं, मुझे कोई परहेज नहीं है इस बात में कहने के किस लिए बनी। अगर कोई कहता है हमारे पास चारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो क्यों करो म्यूनसिपल काउंसिल के हवाले। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूँ, आप इसको सीरियसली लें। ये रोड के ऊपर पशु बैठे हैं, म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर कोई ऐसा स्टाफ नहीं है, ना कोई ऐसी गाड़ियाँ हैं, ना कोई ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर है वहाँ रखने के लिए। हमने बार बार पकड़ के कहीं रावी में, कहीं जो पुलिस ने गौशाला बनाई, कभी वहाँ छोड़े हैं। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, इस बात को आप लोगों जनता से भी पूछ रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ, आपने मुझे भी यहाँ खड़ा कर लिया, तो मैं इस बात को सीरियसली कहता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब को और SSP कठुआ को, इस बात पे सीरियसली। लोगों की जान जाती है, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे सुबह स्कूलों में जाते हैं तो स्कूटरियों के एक्सीडेंट होते हैं, ये बैल जब लड़ते हैं गाड़ियाँ तोड़ते हैं। लेकिन इतने बैल आए कहाँ से? पहले इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसके बाद ये क्यों घूमते हैं? म्यूनसिपल काउंसिल ने कितना ठेका लिया है इनका, बार बार उठा के कहाँ कहाँ छोड़े? ये यहाँ से बैल आते हैं, पहले वहीं इनको पहुँचाया करो, शहर के अंदर क्यों छोड़ते हैं? कौन छोड़ता है? इस बात की इंक्वायरी करें आप। हमने 3 बार क्लियर किया है इसको, DC ऑफिस के लेके, कालीबड़ी से लेके, यहाँ अटली मोड़ से लेके 3 बार मैंने जो इसको क्लियर किया है इस शहर को। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, और ये जो गौशाले हैं इनके हवाले करिए पशु, अगर नहीं लेते हैं तो बहुत सारे संगठन है गवर्नमेंट भी जो किस लिए गौरक्षा की बात करते हैं और गौशाला की बात करते हैं, क्या कहूँ मैं? क्या कहूँ? ये तीसरे दिन मेरे खिलाफ आ जाएंगे, ये गौशाला के खिलाफ बोलता है, ये फलानी जगह खिलाफ बोलता है, तीसरे दिन लड़ने आ जाएंगे, कोई ना कोई नया इल्जाम लेके आ जाएंगे मेरे ऊपर। तो इसलिए आप भी जानते हैं, कठुआ की जनता भी जानते हैं कि 150-150 कनाल जमीन जिन लोगों ने गौशाला के नाम पे रखी है, उनको बोला पशु रखो, हम कोई उनके खिलाफ थोड़ी हैं, लेकिन पशु रखो। ये बैल है, चाहे गाय है, चाहे एक्सीडेंटल गाय है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। या गौशाला है तो सारे जानवर इकट्ठे करके ले जाने चाहिए। एक तो मैंने देखा जहाँ पुलिस की जहाँ है, जहाँ तो वहाँ इकट्ठे कर लो, जहाँ और जो 2-3 गौशाला है वहाँ इकट्ठे करे। मैं आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर साहब को भी कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर
सीरियसली कठुआ की जनता, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमने मिलके काम करना है। लेकिन जैसे हमें डायरेक्शन देंगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कहेगी, मैं तैयार हूँ, गाड़ियाँ हम प्रोवाइड करेंगे। काउंसिल के पास कोई ऐसा इनके लिए प्रावधान नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है काउंसिल के पास। जो गाड़ियाँ हमने ली हैं वो भी मैंने कोई CTF से, कोई कहीं से, कोई ट्राली है, कोई ट्रैक्टर, यहाँ पशुओं के लिए छोड़ने का है, रखने का है। हिंदुस्तान के अंदर हर शहर के अंदर गौशाला का कोई टैक्स होता है, गौशाला के लिए स्पेशल स्टेट पैसे रखती है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बीमारी है जहाँ गौशाला के नाम के कोई पैसा सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उससे ये पशु इकट्ठे भी कर सके और पाल भी सके। तो सीरियसली इस बात को लेना चाहिए। लोगों के एक्सीडेंट होता है, लोगों की जान भी जाती है, और लोगों की जान माल की रक्षा करना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, हमारा सबका मिलकर काम। धन्यवाद। अभी आपने सुना कि क्या कहना है कठुआ के लोगों का, लेकिन एक सवाल फिर यहीं खड़ा होता है कि आखिर इस समस्या के लिए जिम्मेदार है कौन? क्या एक दूसरे के सिर पर ठिकरा फोड़ने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से कठुआ में आवारा पशुओं की समस्या से निजात मिल पाएगी? क्या कठुआ में बनी हुई जो जितनी भी गौशालाएं हैं वो एक कदम उठाएंगी इस ओर? क्या वो इन सभी जानवरों को, इन सभी आवारा पशुओं को छत प्रदान करवाएंगी? अगर करवाएंगी तो कब करवाएंगी? और अगर नहीं करवा रही तो प्रशासन उस पर संज्ञान क्यों नहीं लेता? आज की इस विशेष रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए हमारा चैनल।